Hello all my dear students, good morning to all of you. Welcome to you all once again to your official YouTube channel, that is Ajay Tiwari Science Classes, on the behalf of Shivvraj Singh Children Academy, Jaunpur. All my dear students, I hope that you all will be fit and fine and your studies will be at your best and there will not be any problem. And if there is any problem, I am here to sort out all those. So as you know, at present your chapter number 10, that is reaching the age of adolescence, is running, and in the previous video we were discussing about the endocrine glands, and in the endocrine glands we have discussed about the three glands. Those were pituitary gland, that was also known as master gland, and that was situated in your base of the brain and releasing the growth hormone. Second, we have discussed about the thyroid gland, that was situated in your neck and that was releasing the thyroxine hormone, and it was also largest endocrine gland. And in the last we have discussed about the adrenal gland. Those were situated on the top of both kidneys and it was releasing the emergency hormone, that was adrenaline. So today we will discuss the remaining glands of endocrine system and then we will discuss about the various exocrine glands as well as their effect on the body of the male and female. So without wasting the time, I am starting with your endocrine glands part number 2, and here we are starting with pancreas. Pancreas. Okay beta, so pancreas is a leaf-like structure. Pancreas is a leaf-like structure situated just below the stomach, यानी आपका जो स्टमक है उसके जस्ट बिलो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पैनक्रियाज. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज pancreas is also known as dual gland और mixed gland. कल मैंने आपको बताया था because release digestive juices that contains enzymes as well as insulin hormone that regulate the blood sugar level, It means that pancreas is a dual gland. Why this is dual gland? It acts as a exocrine gland as well as it also acts as a endocrine glands. This acts as a exocrine gland because it releases the digestive enzymes. Those were pepsin and trypsin, and both these pepsin and trypsin help in the digestion of protein. Second, it also releases the hormone that is known as insulin, and insulin hormone is just regulating the blood sugar level in our body, or we can say that it regulates the amount of sugar those are present in our blood. It means that if there is lack of insulin in our body, in that condition people will suffer from डायबिटीज. ठीक है, अगर इंसुलिन हार्मोन ठीक से या प्रॉपर तरीके से या प्रॉपर अमाउंट में रिलीज नहीं किया गया, इन दैट कंडीशन पीपल्स में क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है. सो इंसुलिन इज वेरी वेरी इसेंशियल फॉर रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर लेवल. आप चीनी खाते हो, कोई भी मीठा खाते हो, तो वो आपके बॉडी के नुकसानदेह ना हो, इसका कौन इंश्योरेंस देता है, दैट इज इंसुलिन. इंसुलिन इंश्योरिंग दैट देयर विल नॉट बी एनी बैड एस्पेक्ट और बैड इफेक्ट ऑफ excessive sugar, those are present in your body. और आपकी बॉडी में अगर एक्सेसिव शुगर होती है तो इंसुलिन उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है जो आपकी सेल्स के द्वारा अपटेक कर लिया जाता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द पैनक्रियाज. पैनक्रियाज इज नोन एज व्हाट, डुअल ग्लैंड. द स्ट्रक्चर ऑफ दिस इज लीफ लाइक, सिचुएटेड जस्ट बिलो स्टमक, एंड यहाँ पे मैंने लिखा भी है ऑल्सो नोन एज डुअल ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड बिकॉज रिलीज digestive juices that contains enzyme as well as insulin
और इंसुलिन क्या करता है, रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को. सो दिस इज सफिशिएंट फॉर all of you. Now we are going to discuss about the fifth category, that is ovary. Okay बेटा, this is also known as, आपने पढ़ा है previous chapter में, primary sex organ of female, primary sex organ of female and release egg, and as you know egg is known as what, female gamete, release egg, that is female gamete, as well as hormones, like, दो hormones मैं आपको मेजरली बताऊंगा, estrogen, it can be also written as estrogen, both are 100% correct, and progesterone, it also release relaxin, but that is out of syllabus, लिख सकते हैं relaxin etc. Okay बेटा, so let's consider the role of first estrogen. What is the role of estrogen? Estrogen is responsible for development of secondary sexual characters in females. या हम कह सकते हैं ये फीमेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फीमेलनेस. व्हाट इज फीमेलनेस? फीमेलनेस मीन्स दैट जो ऐसे कैरेक्टर्स फीमेल को फीमेल बनाते हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रीस्ट, ओके, एज वेल एज बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एज वेल एज डिपोजिशन ऑफ फैट in hip region or thigh region, as well as we can say that appearance of pimples. So जो भी secondary sexual characters हैं वो हमको clearly visible होते हैं, and all those secondary sexual characters were developed under the influence of estrogen hormone. So हमने यहाँ से लिखा भी responsible for development of secondary sexual characters in females, or it is also responsible for femaleness. We can say that जब मैंने आपको बताया development of breast, widening of hips, as well as beginning of menstrual cycle, all these are discussed under this. Now we will discuss about the progesterone. Progesterone. What is the role of this progesterone? Progesterone is also known as pregnancy maintaining hormone. Pregnancy maintaining hormone, and also initiate menstrual cycle. Also initiate menstrual साइकिल. यानी कहने वाली बात है यहाँ पे क्या, समझने वाली बात है क्या, एस्ट्रोजन इज ए हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी. हाउ? सपोज egg is released and that is fertilized. In that condition the lining of uterus become thick and spongy and richly supplied with blood. यानी अगर एग का फ्यूजन हुआ तो आपको पता है इम्प्लांटेशन होगा. इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करती है. हाउ दैट लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज प्रिपेयर, जिसको आप इंडोमेट्रियल लाइनिंग कहते हो, उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण वो मोटी हो जाती है, दीवार मोटी हो जाती है, उसके साथ साथ बेटा स्पॉन्जी हो जाती है, और उसमें ब्लड की सप्लाई ब्लड वेसल्स के डेवलप होने की वजह से हो जाती है. ठीक है, तो ये सारा काम किसका होता है? प्रोजेस्टेरोन का होता है. नोट यहाँ से लगाएंगे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, estrogen and progesterone are secreted under the influence of, or secreted under the influence of
पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड इन ओवरीज के सिक्रीशन को कंट्रोल करती है। दैट्स वाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। मैंने आपको कल बताया था, क्यों? क्योंकि अदर ग्लैंड्स की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रही है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के ही इन्फ्लुएंस में बेटा यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का रिलीज होगा। ठीक है, ओके बेटा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला जो हमारा 6th ग्लैंड है, दैट इज टेस्टिस। एज यू नो दैट टेस्टिस इज situated outside the body and encloses in, किसमें बंद रहते हैं? encloses in scrotum and also known as primary sex organ in the case of male and release इनका दो काम होता है बेटा। फर्स्ट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एंड सेकेंड मेल गैमीट दैट इज नोन एज स्पर्म, यानी स्पर्म का प्रोडक्शन और उसके साथ साथ टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन। यहां से देखेंगे टेस्टोस्टेरोन, this is the hormone responsible for development of secondary sexual characters कहाँ पे? in male, ठीक है, such as appearance of facial hair, आपके फेस पे हेयर आने लगेंगे, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, वाइडनिंग ऑफ शोल्डर्स, ये सभी बेटा है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अंतर्गत आते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टेस्टोस्टेरोन। सो नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द ऑल different kind of endocrine glands. Few are left, those are not part of your syllabus, but we have to take a general introduction. There is a gland that is known as pineal gland, जो कि आपका ब्रेन है उसके सेंटर पार्ट में मिलती है और सबसे छोटी ग्लैंड है endocrine. Smallest endocrine gland, that is pineal gland, situated in your center of the brain, and this pineal gland रेगुलेट स्लीपिंग पैटर्न मॉड्यूलेशन, यानी आपका जो स्लीपिंग का पैटर्न है उसको रेगुलेट करने का काम करती है कौन? पाइनियल ग्लैंड। एक और होती है बेटा पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड और पैराथायराइड दोनों की लोकेशन नेक में होती है और पिट्यूटरी और पाइनियल दोनों की लोकेशन ब्रेन में होती है। ठीक है, पिट्यूटरी बेस में और पाइनियल सेंटर में मिलती है। अब यहाँ थायराइड भी नेक में है और पैराथायराइड भी नेक में है। पैराथायराइड के बारे में बताते हैं, दिस रिलीज पायराथ हार्मोन। ये क्या रिलीज करती है? पायराथ हार्मोन, जो कि कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को, आपके बॉडी में कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ठीक है बेटा, तो ये तो कुछ दो और एक्स्ट्रा ग्लैंड्स थी जिनके बारे में हमने आपको बताया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ओके बेटा, तो अगली ग्लैंड हमारी कौन सी है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये क्या होती हैं? दीज आर द डक्टेड ग्लैंड। ये डक्टेड ग्लैंड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी आर कंसिडरिंग विथ फर्स्ट लीवर चूंकि काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा बेटा। लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड अगर पूछेगा तो थायराइड है, और केवल लार्जेस्ट ग्लैंड पूछे तो लीवर है। ध्यान रखिएगा, अगर इंडोक्राइन ग्लैंड तब थायराइड, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड तब तो थायराइड है। अगर लार्जेस्ट ग्लैंड ही पूछा है तो आपको लीवर लिखना है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी एंड
हेल्प इन, इसका क्या क्या काम होता है मैं आपको यहां से बताता हूं। फर्स्ट, डाइजेशन ऑफ फैट, यहां हम कह सकते हैं डाइजेशन में सीधा सीधा। सेकेंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, बिकॉज blood clotting factors are formed here, ठीक है बेटा। as well as this also prevent normal blood clotting। अब आप कहेंगे सर आप दोनों चीजें अलग अलग बता रहे हैं, आपके बॉडी में ब्लड है ना 5 से 6 लीटर, वो क्यों नहीं जमता है, उसका क्लॉट क्यों नहीं बन जाता है? क्योंकि बेटा आपके बॉडी में हिपैरिन नाम का एक सब्सटेंस है। क्या? हिपैरिन, वो लीवर द्वारा बनाया जाता है और वो ब्लड को जमने नहीं देता है आपके बॉडी में। लेकिन अगर कहीं पे कट हो गया, बाउंड हो गया, तो ब्लड बहने लगता है, फ्लो होने लगता है, तो उसको रोकना भी जिम्मेदारी बनती है ना। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को ये रिलीज करता है कि जाओ और वहाँ पे जहाँ पे कटा हुआ पार्ट है वहाँ पे ब्लड को क्लॉट करा दो, उस प्लेस पे क्लॉट कराओ, बॉडी में नहीं, तो वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है, तो ब्लड बहना बंद कर देता है। तो ब्लड को बहने से रोकने में और आपके बॉडी के अंदर ब्लड जम न जाए, दोनों में लीवर का महत्वपूर्ण योगदान है। एज वेल एज ऑल्सो स्टोर emergency food that is known as glycogen, ठीक है। अगर आपने 4-5 दिन खाना नहीं खाया तो आपकी बॉडी को तो एनर्जी चाहिए ना, तो ये थोड़ा थोड़ा खाना चुराता रहता है और उसको इमरजेंसी के लिए अपने लीवर में बचा के रखता है कि अगर किसी ने खाना नहीं खाया, गुस्सा हो गया अपने मम्मी पापा से, तो उसको एनर्जी तो चाहिए ना, तो वो एनर्जी ग्लाइकोजन देता रहेगा। 24 घंटे तक एनर्जी दे देता है कौन? ग्लाइकोजन। 24 आवर्स तक की एनर्जी आपको दी जा सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट, लीवर। अब बेटा यहाँ से एक ग्लैंड और देख लेते हैं, सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड, ये आपकी सैलिवरी ग्लैंड जो है ये कहाँ होती है? माउथ में होती है। एंड इट रिलीज सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम, सैलिवरी amylase enzyme that help in the digestion of carbohydrate, ठीक है बेटा, यानी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कराने में सैलिवरी ग्लैंड का रोल है। एक और देख लेते हैं, मैमेरी ग्लैंड। मैमेरी ग्लैंड आपको मैंने बताया था फीमेल्स में जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं तो मैमेरी ग्लैंड भी डेवलप हो जाती है। सो मैमेरी ग्लैंड हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, इन फीमेल्स under the influence of pituitary hormone, and एक और लिख सकते हैं हाइपोथैलेमस हार्मोन, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड तो आप जानते ही एक होता है हाइपोथैलेमस, जो कि आपके ब्रेन का पार्ट होता है बेटा। इसी में थ्रस्ट सेंटर, हंगर सेंटर सिचुएटेड होता है, यानी आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, क्यों? क्योंकि उसका एक सेंटर है कहाँ? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस आपके ब्रेन का पार्ट है। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड जितनी अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है क्योंकि ये अदर ग्लैंड्स की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, और मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस इज नोन एज मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड
एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कोई कंट्रोल करता है, वो हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस चूंकि पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है और पिट्यूटरी अदर ग्लैंड्स को कर रही है, तो पिट्यूटरी है मास्टर ग्लैंड और हाइपोथैलेमस है मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। देयर आर टू मोर, हम कह सकते हैं एक स्वेट ग्लैंड है या सिबेसियस ग्लैंड है, तो वो चूंकि सिलेबस से बहुत बाहर की चीज़ है, तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है। ओके बेटा, तो अभी तक हमने सेक्स हार्मोन तो बना लिया, अब उसका इफेक्ट देखेंगे। तो यहाँ से देखेंगे इफेक्ट ऑफ सेक्स हार्मोन। इफेक्ट ऑफ सेक्स हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स का क्या इफेक्ट होता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे इन फीमेल्स, इन फीमेल्स, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे आप अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इस्ट्रोजन, जो कि आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्ट्रोजन फीमेल्स ovary produces, or we can write releases an egg into fallopian tube, into fallopian tube every month for फर्टिलाइजेशन। आपको बताऊं कि एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन, और यहां से आप बढ़ा सकते हैं एंड, जो कि आपको बताया नहीं गया है, FSH, ठीक है, और एक और LH। तो ये FSH और LH, FSH को कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि ओवरी को मैच्योर कराते हैं, और LH जो कि एग को रिलीज कराते हैं, ठीक है, by for fertilization by the process ovulation। यानी जो एग रिलीज होता है उसको, या ओवम जो रिलीज होता है उसको हम क्या कहते हैं? ओवुलेशन। वो किसकी वजह से होता है? इस LH की वजह से होता है। तो LH क्या कराता है? एग प्रोडक्शन। LH क्या कराता है? एग प्रोडक्शन। FSH क्या कराता है? ओवरी को क्या करता है? मैच्योर कराता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये दोनों रिलीज कहाँ से होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से होते हैं। कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो आपको स्टेप नंबर 1 समझ में आ गया कि एस्ट्रोजन, FSH और LH के इन्फ्लुएंस में ओवरी ने एक एग को रिलीज कर दिया फैलोपियन ट्यूब में। इन द सेम वे यूटेरस prepares itself to receive fertilized egg। यानी जैसे ही एग रिलीज हुआ फैलोपियन ट्यूब में, अब उसको ले लगता है कि इसका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो वो कहाँ जाएगा? यूट्रस में जाएगा ना इम्प्लांटेशन के लिए। तो यूट्रस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ से देखिए, इन द सेम टाइम लिख सकते हैं, इन द सेम टाइम यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग by maintaining its endometrial lining, जो कि सबसे अंदर वाली लाइनिंग है, by maintaining its endometrium under the influence of कौन सा हार्मोन? सही कह रहे हैं आप, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। यानी प्रोजेस्टेरॉन क्या कराता है? इंडोमेट्रियम को मेंटेन कराता है। यानी होता क्या है? इंडोमेट्रियम बिकम थिक, इंडोमेट्रियम बिकेम थिक, स्पॉन्जी एंड व्हाट? वैस्कुलर। यानी उसमें ब्लड की सप्लाई स्टार्ट हो गई। अब क्या होगा? अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो इम्प्लांटेशन हो जाएगा, अगर नहीं हुआ, इफ fertilization do not takes place, lining of uterus जो कि बनी थी, lining of uterus will
सेड ऑफ, लाइनिंग ऑफ यूट्रस विल सेड ऑफ, यानी जो ये लाइनिंग थिक स्पॉन्जी वैस्कुलर बनी थी ये टूट जाएगी, सेड ऑफ एंड कम्स आउट as a blood and mucus, as a blood and mucus known as menstruation, यानी हमने बार बार एक टर्म यूज किया था मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, इसमें फीमेल्स में साइक्लिक चेंज होता है एवरी मंथ, जब एग को रिलीज कर दिया जाता है ओवरी से तो उसको लगता है कि फ्यूजन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, तो यूट्रस भी अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है। अगर फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो चूंकि यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर कर चुकी थी, लाइनिंग मेंटेन कर चुकी थी, उस लाइनिंग को टूटना पड़ता है, तो वो टूट जाती है, टूट के वो बाहर आती है, तो उसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, ये एक कॉमन सा शब्द है मेंस्ट्रुएशन। यहाँ से कुछ और स्टैट्स देख लेते हैं। बिगिनिंग ऑफ और स्टार्टिंग ऑफ और इनिशिएशन ऑफ menstrual cycle at puberty is known as menarche। ठीक है, बिगिनिंग जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की उसको हम क्या कहते हैं, मेनार्च। प्यूबर्टी पे होती है, आपको पता ही है 11 से 13 इयर्स की एज में हो सकती है। दूसरा, टर्मिनेशन ऑफ menstrual cycle is known as menopause। ठीक है, ये 40 से 55 साल के बीच में होता है। ठीक है, तो ये दो टर्म्स आपको याद रखने हैं, बिगिनिंग मेनार्च और एंडिंग या टर्मिनेशन मेनोपॉज। ध्यान देने वाली बात क्या, मेनोपेज ये क्या करता है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ चाइल्ड्स पे। अगर किसी के 5 बच्चे हैं तो अगर 50 साल की उम्र में होना था मेनोपॉज तो 55 में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक प्रेगनेंसी होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के समय मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं, तो अगर किसी के 10 बच्चे हैं तो वो 10 साल मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुई तो 10 साल और आगे बढ़ जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इसमें कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक्स प्लेस एट every 28 days and it is a cyclic change and it's a cyclic change completed in 4 phases, यानी 4 फेज होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के जिसमें ये कंप्लीट होती है। क्योंकि सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फेजेस जो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, फेजेस यहाँ से देखिए, फेज 1 होता है फर्स्ट टू 4 डेज, जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। यहाँ पे क्या होता है, लाइनिंग ऑफ यूट्रस, लाइनिंग ब्रेक्स एंड comes out as blood and म्यूकस और ब्लड के रूप में ये बाहर आ जाती है। कौन? एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो कि यूट्रस की है, ड्यू टू लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन in absence of pregnancy, यानी प्रेगनेंसी अगर नहीं हुई तो लाइनिंग टूट के बाहर आ जाएगी। दूसरा, फेज नंबर 2 जो कि होता है 4 से 12 दिन तक। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फॉलिकुलर फेज। यहाँ पे क्या होता है, हियर रिपेयरिंग ऑफ लाइनिंग ऑफ
यूटेरस, यानी जो यूटेरस की लाइनिंग टूटी थी वो क्या हो जाएगी, रिपेयर हो जाएगी ड्यू टू FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन, FSH। तीसरा फेज 3, इसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोला जाता है, ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ ओवम, किसकी वजह से, ड्यू टू LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और चौथा और लास्ट, सॉरी, इसको हम कहते हैं लूटियल फेज। लास्ट फेज नंबर 4 जिसको कहा जाता है लूटियल फेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंडोमेट्रियल लाइनिंग बिकम थिक, स्पॉन्जी एंड वास्कुलर, यानी वो जैसी थी वैसी हो जाएगी, एंड वास्कुलर ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन की वजह से वो लाइनिंग जैसी थी वैसी फिर से हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चेंजेस इन द फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। मेल में क्या चेंजेस आते हैं, मेल्स में क्या चेंजेस आते हैं, पहला प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म शुरू हो जाता है। ठीक है बेटा, हेयर ऑन द बॉडी, हेयर्स ऑन बॉडी, डीपनिंग ऑफ वॉइस, ठीक है, और कह सकते हैं आप वाइडनिंग ऑफ शोल्डर्स ETC। ठीक है बेटा, so this was all about for today's class. In the next video we will discuss the remaining topic, that is what, reproductive health, keywords and exercise. So like always, thank you very much for watching the video, and if you able to understand the concept, just like the video and you can also share with your friends. So that is all about for today. Like always, have a nice day, keep smiling. Jai Hind.